8واں باب اور اس کی 4 اور 5 آیت غور سے سنیے گا۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، اور تو ان سے کہہ دے کہ خداوند یوں فرماتا ہے، کیا لوگ گر کر پھر نہیں اٹھتے؟ کیا کوئی برگشتہ ہو کر واپس نہیں آتا؟ پھر یروشلم کے لیے لوگ کیوں ہمیشہ کی برگشتگی پر اڑے ہیں؟ وہ مکر سے لپٹے رہتے ہیں اور واپس آنے سے انکار کرتے ہیں۔ کئی بار ہم یہ سوچتے رہتے ہیں کہ شاید خدا مجھے بھول گیا ہے، خدا مجھے برکت نہیں دینا چاہتا، خدا نے مجھے چھوڑ دیا ہے، خدا نے مجھے رد کر دیا ہے۔ خدا کی کلیسیا آئیے غور سے سنیے، میں پھر اس آیت کو صاف آواز میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ کلام میں لکھا ہے 4 آیت سے، خدا اپنے بندہ یرمیہ سے کہتا ہے، تو ان سے کہہ دے کہ خداوند یوں فرماتا ہے۔ فرمانے والا کون ہے؟ خداوند۔ خداوند یوں فرماتا ہے، کیا لوگ گر کر پھر نہیں اٹھتے؟ اٹھ جاتے کہ نہیں؟ یا کوئی بندہ گرے اور پڑا ہی رہے؟ ایسے بائبل میں بہت سارے لوگ ملتے ہیں جو گر جاتے ہیں اور پھر گرے رہتے ہیں۔ خدا نے ایک بادشاہ کے بارے میں کہا جس نے خدا کو چھوڑ کر غیر معبودوں کی عبادت اور پرستش کرنا شروع کر دی، اور وہ کلام میں لکھا گر پڑا، اور اس نے اپنے معبودوں سے پوچھنے کے لیے اپنے بندے بھیجے کہ جا پوچھ کیا کہ فلاں سے پوچھ کیا کہ جو میں اب گر پڑا ہوں، یہ بیماری جو مجھ پر آئی ہے، کیا میں اس سے پھر اٹھوں گا کہ نہیں اٹھوں گا؟ تو آخر خدا نے اپنے خادم کو بھیج دیا اور ان بندوں کو بتایا، سنو خدا فرما رہا ہے کہ جس جگہ سے تو گرا ہے اب وہاں سے اٹھے گا نہیں، وہاں تو گرا ہی رہے گا، اور ایسی حالت میں تو قبر کو جائے گا۔ میری بیٹی اور بیٹو، خدا کا کلام کہتا ہے کہ کیا جا تو ان سے کہہ دے کہ خداوند یوں فرماتا ہے، کیا لوگ گر کر پھر نہیں اٹھتے؟ کیا کوئی برگشتہ ہو کر واپس نہیں آتا؟ اگر کوئی کسی شخص نے توبہ کر لی ہے، اس میں وہ گناہ میں چلا گیا ہے، تو کیا لوگ واپس نہیں آتے کہ خدا کے حضور توبہ کرے، دوبارہ سے خدا سے معافی مانگے کہ خدا میں بھول گیا تھا، مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، یہ مجھ سے خطا ہو گئی ہے، اور میں پھر دوبارہ اپنی جگہ پر آنا چاہتا ہوں۔ اس کے بارے میں نئے عہد نامے میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی بھائی یا بہن گناہ میں گر جائے تو اس کو اوپر سے اور مت مارو، اسے موقع دو، خدا سے دعا کرو کہ وہ اٹھے پھر سے باہر ہو جائے، اور اپنا بھی خیال رکھو، پھر تم جو کھڑے ہوئے ہو تم نہ گر پڑو۔ خدا کی کلیسیا آئیے غور سے سنیے، کلام میں خدا یہ گلا کر رہا ہے، اپنے خادم کو کہہ رہا ہے، اس سے کہہ دے کہ کیا لوگ گر کر پھر نہیں اٹھتے؟ کیا لوگ برگشتہ ہو کر واپس نہیں آتے؟ لیکن یہ لوگ واپس آنے سے انکار کرتے ہیں۔ اس بات سے انکار ہے؟ واپس آنے سے۔ ہم نہیں واپس آئیں گے، بس اب ہم نے خدا کو چھوڑ دیا ہے، ہم واپس نہیں آئیں گے۔ اور سنیے ہوتا کیا ہے، جو بندہ خدا کو چھوڑ کر گناہ میں چلا جاتا ہے اور واپس آنے سے انکار کرتا ہے، خدا کا کلام کیا کہتا ہے، جب پھر یروشلم کے یہ لوگ کیوں ہمیشہ کی برگشتگی پر اڑے ہیں؟ وہ مکر سے لپٹے رہتے ہیں اور واپس آنے سے انکار کرتے ہیں۔ کلام کیا کہتا ہے؟ وہ ہمیشہ کی برگشتگی پر اڑے ہوئے ہیں۔ کس بات پر؟ مجھے آواز نہیں آئی، کس بات پر؟ اب میں آپ کو مثال دینے لگا ہوں، پھر ہم دوسرے والے کی طرف جائیں گے۔ اتنے لوگ ہیں جنہوں نے بہتا ہوا پانی دیکھا ہے، کھالے کا، نالے کا یا نہر کا، سب نے دیکھا ہے۔ آپ دیکھنا کہ کوئی ایسا پل یا کوئی ایسی لکڑی جو اس نہر کے اوپر سے گزرتی ہو اور پانی اس پر اٹک کے گزرتا ہو، کوئی پتھر، کوئی کاغذ، کوئی ایسی چیز جو اوپر تیرتی ہوئی آتی ہے، جب اس کو ذرا سی اٹکا لگ جاتی ہے تو وہ پتھر وہاں پر ہی اڑ جاتا ہے۔ اڑ جاتا کہ نہیں؟ باقی کی جو چیزیں ہوتی ہیں جو پانی میں ڈوب جاتی ہے یا پانی کے اندر ہے، وہ سب گزر رہی،
पर जो ऊपर तैर रहा है वो अड़ा हुआ है। एक बार बोल दो हालेलुया। समझ आ रही है? जो ऊपर तैर रहा है वो अड़ जाता है और अपनी जगह पर अड़ा ही रहता है। जो चीज गुजर गई है वो आप देखना, रात को, दिन को, अगले दिन को, वो कहीं की कहीं पहुंच जाएगी। जो अड़ गया है वो खड़ गया है। हालेलुया। जो अड़ गया है वो उधर ही खड़ गया है, रुक गया है। जब आप अपनी बरगश्तगी पर अड़े हुए हैं तो खुदा गिला कर रहा है, इसलिए ये लोग वापस आने से इनकार करते हैं। अपनी बरगश्तगी पर अड़े हुए हैं, इसलिए मैंने सुना, मैंने कान लगाया और उनकी बातें ठीक नहीं, मैं भी उनको बरकत नहीं दूंगा। आइए आप दूसरे वाले पर चलते हैं। तो देखिए यिर्मयाह 7 बाब की 23वीं आयत से बेटा ऊंची आवाज में पढ़िए। बल्कि मैंने उनको ये हुक्म दिया और फरमाया कि मेरी आवाज के शिकवा हो, और मैं तुम्हारा खुदा होऊंगा और तुम मेरे लोग होगे, और जिस राह की मैं तुमको हदायत करूंगा उस पर चलो ताकि तुम्हारा भला हो। लेकिन उन्होंने ना सुना, न कान लगाया, बल्कि अपनी मसलहतों और अपने बुरे दिल की सख्ती पर चले और बरगश्ता हुए और आगे ना बढ़े। आमीन। लिखा है, मैंने तो उनको फरमाया, मैंने हुक्म दिया, मैंने उनको कहा मेरी आवाज के शिनवा हो। किसके? हालेलुया। किसके? मेरी आवाज बोला, खुदा की आवाज क्या है? कलाम की आवाज। मेरी आवाज के शिनवा हो, मेरी बात सुनो, मेरी तरफ आओ, मेरा कलाम सुनो। लेकिन वो अड़े हुए, वो नहीं सुनते, वो उस बात को सुन ही नहीं रहे। खुदा की कलीसिया, आइए गौर करें। खुदा कहता है मैंने कान लगाया, मैंने उनको आवाज दी, मैंने कहा मेरी तरफ, मेरी आवाज के शिनवा हो, मैं तुम्हारा खुदा हूं। अभी हमने पहले सेक्शन में सीखा है कि जिसके साथ खुदा है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। खुदा उसे बरकत देना चाहता है, खुदा उसे बढ़ाना चाहता है, खुदा उसे सरफराज करना चाहता है, खुदा उसे इकबालमंद करना चाहता है। खुदा की कलीसिया, लिखा है मैंने तो आवाज दी, मैंने कहा सुनो मेरी आवाज, मेरी आवाज के तालिब हो जाओ, मेरे कलाम के तालिब हो जाओ। लेकिन उन्होंने कहा हम नहीं सुनेंगे। और आगे क्या लिखा है सुनिए, 24वीं आयत पढ़िए जरा बेटा ऊंची आवाज में। ये लफ्ज मसालहतों है, मसालहतों यानी मसालहत का मतलब होता है सलाह। ऐदी सलाह, औदी सलाह, भैन दी सलाह, भरा दी सलाह। ते जेड़ा बंदा गिरजे नहीं ना जाता उन्हें पता केड़ी सलाह देनी है। तू आते दिन पा लो, फिर अगला तो आ जो भावे कुछ भी आते हो और नहीं द्वार नहीं रखना, जमाई गई है और नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਛੁੱਟੀ द्वार दी बहुत ही द्वार की ਹੁੰਦਾ सारे लोग ते करते ने। उन्हें वक्री लड़ाई पा के गई। वो अपने इर्द गिर्द की मसालत को सुनते हैं, वो खुदा की नहीं सुनते, खुदा के कलाम की नहीं सुनते। वो अपनी मसालतें पूरी करते हैं, खुदा की सलाह नहीं लेते। और कलाम में लिखा है नेक सलाह के बगैर मंसूबे फेल हो जाते हैं। जब वो बरकत लेने के लिए इस कदर काबिल होते हैं लेकिन बरकत नहीं पा पाते, इसलिए कि उन्होंने खुदा की सलाह नहीं ली बल्कि अपनी सलाह पर चले, अपनी सलाह पर चले। और एक बंदे ने उठ के सारे मजमे को बर्बाद कर दिया। अगर तुम मेरे जैसा आदमी हो तो मैं उससे कहूं तो मेरा भाई है ठीक है, लेकिन अपना रास्ता पकड़े। मुझे ऐसा रिश्तेदार नहीं चाहिए जो मेरे खुदा से मुझे अलग करे। हालेलुया। तुम्हें कौन सी ऐसी चीज है जो खुदा की मोहब्बत से जुदा कर सकती है? हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मैं सुलह के लिए नहीं आया, मैं तलवार चलाने के लिए आया हूं। मैं सास को बहू से, बहन को भाई से, बाप को बेटे से, माँ को बेटी से जुदा कर दूंगा। और जुदा ये नहीं कि खुदा मेरा 2 टुकड़े कर देगा। उसका मतलब ये है कि मैं ऐसे नाते, मैं ऐसे रिश्ते तोड़ दूंगा, उनको अलग कर दूंगा, क्योंकि वो जो मेरे हैं वो अलग होंगे और जो शैतान के हैं वो अलग होंगे। इसलिए खुदा फरमाता है कि जब मैं लेने के लिए आऊंगा, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा।
दो औरतें आपस में एक जगह काम करती होंगी, एक ले ली जाएगी, एक छोड़ दी जाएगी। दो आदमी एक ही चारपाई पर बैठे होंगे, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा, एक छोड़ा जाएगा। लेकिन तो दोनों एक ही जगह पर है, एक ही जगह काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने सलाह एक ही आदमियों की सलाह है और एक हमेशा खुदा की सलाह लेता रहा। हालेलुया। मुझे अपने खुदा की सुननी है, मुझे रिश्तेदारों की नहीं सुननी, मुझे अपने करीबी दोस्तों की नहीं सुननी, मुझे अपने खुदा की सुननी है। अगर आप अय्यूब की किताब पढ़ें, खुदा का कलाम क्या कहता है? अय्यूब के दोस्त हमेशा ये कहते रहे, हमारी मान साडी सुन, कुर्बानियां चढ़ा, तू जरूर गुनाह किया है, इससे नहीं तेरे पे मुसीबत आई है। वो कहता है ऐसा नहीं है, मैंने खुदा का कोई गुनाह नहीं किया, मेरा खुदा मैं जानता हूं। और वो इस बात पर उसके दोस्त जो थे यूब को देख करते रहे, हर रोज देख करते रहे। लेकिन खुदा का कलाम कहता है, एक वक्त आया कि जब खुदा अय्यूब से कलाम करता है, अय्यूब से कहता है, देख मैं तुझे माफ करने वाला हूँ, लेकिन तेरे दोस्तों ने मेरे जरूर खता किया है, तू इनके लिए दुआ कर और मैं इनको माफ कर दूंगा। हालेलुया। किसको कहा? दोस्तों को कहा? नहीं, बल्कि अय्यूब से कहा तू इनके लिए दुआ कर। और अय्यूब जो था बीमार आदमी था उस वक्त, और क्या जैसे अय्यूब ने उनके लिए दुआ करना शुरू की, क्या खुदावंद मेरे बड़े दोस्त को, छोटे दोस्त को, भाई को, वो फलां दोस्त को तुम माफ कर दे, उसके गुनाह को माफ कर दे। कलाम में लिखा जब वो उनके लिए बरकत मांग रहा था, उनकी सलाह कर रहा था, खुदा के हुजूर उनके लिए दुआ कर रहा था, तो अय्यूब का जो अपना बदन था वो सर के जान से लेकर पांव के तलवे तक एकदम से सारा एक्टिव हो चुका था, ठीक हो चुका था। हालेलुया। प्यारी बहनों और भाइयों, अगर आप दुनिया की सलाह पर चल रहे हो, अगर अय्यूब भी उन जैसा होता तो वो भी वैसा ही करता जैसे उसके दोस्त कह रहे थे, लेकिन वो ऐसी बात नहीं सुन रहा, वो अपने खुदा की बात कर रहा है। और इसीलिए खुदा ने अय्यूब के साथ बात की है, उसके दोस्तों के साथ बात ही नहीं की, बल्कि अय्यूब से कहा तू इनके लिए दुआ कर। अगर हम अड़े हुए हैं तो इसलिए अपनी जगह पर ही खड़े हुए हैं। अगर हम डर से मस नहीं हुए तो खुदा ने भी हमें उसी जगह पर ही रोक रखा है। हम कई सालों से प्लान कर रहे थे कि हम दुकान बनाएंगे, नहीं बना सके। हम कई सालों से प्लान कर रहे थे कि अगले साल हम बेटी की शादी करेंगे, नहीं कर सके। हम प्लान कर रहे थे कि हम बेटे को बाहर भेजेंगे, कई साल हो चुके, कभी वीजा फेल हो जाता है, कभी पैसे नहीं बनते, कभी हम कुछ करते हैं, हमें ये चाहिए कि हमारा बिजनेस बढ़ जाए, पर मुझे खुदा के हुजूर में जाना पड़े। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, जब नौकरी नहीं है, जब कारोबार नहीं है, इसको कहो दुआ करी मेरे वास्ते, अम्मी दुआ करी, आज मैं पता कर चल गया नौकरी का है, खुदा के खातों से दुआ करना मेरे लिए, मुझे नौकरी चाहिए। लेकिन जब नौकरी मिल गई फिर खुद कभी भी दुआ करने के लिए नहीं आया, कभी शुक्रगुजारी करने के लिए नहीं आया। और मैं आपको बताता हूं कि वो नौकरी तो उसे मिली, पर उस नौकरी के अंदर ब्लेसिंग नहीं आई। कभी माँ उस तनख्वाह से खुश नहीं हुई, कभी बाप उस तनख्वाह से खुश नहीं हुआ, कभी उस महीने के अंदर वो पैसा पूरा ही नहीं पड़ा। अगर आप अपनी जगह पर अड़े हुए हैं तो उसी जगह पर खड़े हुए हैं, आप बरकत नहीं पा पाते। बड़ी मुश्किल से आप ये सोचते रहते हैं कि चलो इस संडे मेरा अच्छा काम लगा हुआ है, मुझे तो वहां काम करना है, चलो अगले संडे चला जाऊंगा। लेकिन याद रखें खुदा के हुजूर क्या लिखा है, खुदा के हुजूर ये लिखा है, खुदा के कलाम में ये लिखा है कि जब तेरी फसल पक जाए तू हाथ उगाना चाहता है, अब जोर का महीना है, अब जल्दी से गंदम काटनी है, लेकिन अगर मेरी ईद बीच में आ जाए, अगर मेरी ईद बीच में आ जाए तो अपने काम को वहीं पर छोड़ देना। हालेलुया। अपने काम को वहीं पर छोड़ देना, पहले तो मेरी ईद मनाना। हालेलुया। क्या करना? मेरी पहले क्या करना? काम को वहीं छोड़ देना, पहले तो मेरी ईद को मनाना। मैंने लोगों को देखा है, खुदा की कलीसिया सच्ची बात कहने लगा, उनको पता है कि ये चर्च का टाइम है, वो या तो नहाने में वक्त ज़ाया कर देते हैं या सुबह वक्त पर उठते ही नहीं है। हालांकि ड्यूटी पर ठीक टाइम पर उठते हैं, ड्यूटी पर जाना है ठीक टाइम पर उठेंगे, चर्च जाए तो कोशिश करेंगे चल पिछली मीटिंग से चले जाओ,
जो भी लेट हो गई चल फिर अगली बारी से, अगली बारी में आ गई उसको पहले बुलावा आ जाए। अगर हम अपनी जगह पर खड़े हुए हैं तो वहीं पर ही खड़े हुए हैं, आगे बरकत नहीं है। हालेलुया। हमने फैसला किया कि हम निकल जाए यहाँ से, हम अड़े ना रहे, हम खड़े ना रहे। जो लोग अड़े रहते हैं ना, अब कभी गौर करना, जो लोग चर्च नहीं जाते, जो दुआ नहीं करते, जो अपनी दायगी को नहीं देते, जो अपने दिल को नहीं खोलते। अब देख रहे कई ऐसे हमारे बहन भाई हैं, ओ बाथरूम का कपड़ा गाल के पिछों मोरियां होके चाव दी, अपने बाथरूम का कपड़ा नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि वो अपनी जगह पर अड़े हुए, उधर ही खड़े हुए। अगली बरकत ही नहीं है, तरक्की नहीं है, कामयाबी नहीं है। चाहते थे कि बेटा आगे पढ़े, नो। हम चाहते थे कि बेटी फलाना काम करे, नो। जिधर जाते हैं जवाब ही आता है, जिधर जाते हैं तरक्की नहीं होती, कामयाबी नहीं होती, घाटा ही बढ़ता है। कोई भी काम शुरू करते हैं वो डेट हो जाता है। खुदा की कलीसिया, क्योंकि हम अड़े हुए। खुदा कहता है मैंने तो कहा मेरी आवाज के शिरमा हो, मेरे तालब हो जाओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बरकत दूंगा। हालेलुया। लेकिन नहीं, उन्होंने सुना नहीं। मैंने भी कान बंद कर ली, क्योंकि मैं तुम्हारी आवाज ही नहीं सुनूंगा। तो मेरी आवाज नहीं सुनोगे, मैं तुम्हारी आवाज नहीं सुनूंगा। पढ़िए शायद को फिर से खुदा के कलाम में 24वीं आयत। लेकिन उन्होंने ना सुना, लेकिन उन्होंने, बोलो तो सही, लेकिन उन्होंने ना सुना और न कान लगाया, बल्कि अपनी मसलहतों और अपने बुरे दिल की सख्ती पर चले। बल्कि अपने बुरे दिल की सख्ती पर चले। दिल को पत्थर बनाया होगा, नहीं दस तो मत सोना, भावे जितना मर्जी कलाम सुना लो, जो मर्जी कह लो, असी अपनी जगह पे ठाए नहीं हिलना। तो आगे क्या लिखा सुनिए, और बरगश्ता हुए और आगे ना बढ़े। अगर आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, इसका मतलब है खुदा ने आपकी बढ़ोतरी रोक रखी है, खुदा ने आपकी कामयाबी रोक रखी है। खुदा तो ये चाहता है, खुदा के कलाम में लिखा है कि जिस तरह मैं बड़ा हूं, मेरा तख्त बड़ा है, आसमान मेरा है, जमीन मेरी है, मेरे लोग मेरी तरह हो जाए। हालेलुया। मेरे लोग मेरी तरह बढ़ जाए। एक मिसाल देके फिर हम दुआ करेंगे। कितने लोग हैं जो यूसुफ के बारे में जानते हैं? सब लोग जानते हैं। कलाम कहता है कि यूसुफ बाप की गोद में रहता था, बाप के साथ बहुत प्यार करता था, बाप को उसके साथ प्यार। अब खुदा यूसुफ को बादशाह बनाना चाहता है। पहली प्रॉब्लम उसके लिए ये आती है कि अपने बाप की गोद से खुदा उसको निकालता है। जब तक गोद में रहता वो बादशाह नहीं बन सकता, खुदा बाप की गोद से निकालता है। खुदा अब्राहम को बड़ी बरकत देना चाहता है, पहले कहता अपने बाप के घर से निकल। हालेलुया, हालेलुया। आवाज नहीं आ रही? हालेलुया। खुदा अब्राहम को बरकत देना चाहता है और पहले कहता अपनी जगह को छोड़ अपनी जगह को, अपने बाप के घर से निकल, मैं तुझे बरकत देना चाहता हूं। अगर अब्राहम कहता नहीं खुदा मुझे ठीक है, अब मंजी दे बरकत दे दे, सवेरे शाम मंजी ते दुआ करके सौ जाने, मंजी ते दुआ करके ते कई बारी ते दुआ ही लेट हो जाती, अभी उठे लेट ते फिर जाते हैं नौकरी ते भी जाना, पा बेटा पा करो ते जाते हैं खुदा को नहीं थे रख बचे। खुदा कहता है अब्राहम से निकल, यहां से उठ, यहां से चल, मैं तुझे बरकत देना चाहता हूं। खुदा बरकत देना चाहता है। इतना मुश्किल था अब्राहम को अपना बाप का घर छोड़ना। वहां पर तो दौलत थी, वहां पर तो ऐशो आराम था, लेकिन खुदा कहता है मैं तुझे बरकत देना चाहता हूं, निकल यहां से। अब्राहम निकला। हालेलुया। उसका नाम के मालो दौलत खुदा ने बढ़ाया। अगर बाप के साथ रहता तो वो बाप की जायदाद होती। खुदा अब्राहम को नक करके उसे अपनी बरकत देना चाहता है। और खुदा के कलाम में लिखा खुदा ने अब्राहम को नक किया और बरकत दी, और उसके सारे कुनबे को नहीं दी, बल्कि अब्राहम को बरकत दी। अब्राहम को बढ़ाया, सरफराज किया, और ना कि उसे सब कुछ बढ़ा दिया,
बल्कि उसका नाम भी बदल दिया। हालेलुया। कितने जानते पहला नाम क्या था? अब्राहम। अब्राहम का मतलब होता है बाप। खुदा ने कहा आज के बाद तेरा नाम अब्राहम नहीं बल्कि अब्राहम है। आज के बाद तो सिर्फ बाप नहीं बल्कि कौमों का बाप होगा। हालेलुया। बढ़ाया नहीं बढ़ाया? बढ़ाया नहीं बढ़ाया? अब्राहम कहता मैं तो खुदा ने इत्थे रहना, इत्थे भी तू ही खुदा है ना, कितने बड़ी बहुत ही बरकत मिलती है, इत्थे भी जो ही खुदा है ना, खुदा ना तू भी फिर इत्थे रहो। आगे सुनिए, यूसुफ को खुदा बादशाह बनाना चाहता है पर पहले उसको बाप की गोद से निकालता है। आपका वो गर्म बिस्तरा, आपका वो ठंडा कमरा, आपकी वो अच्छी अच्छी नेमतें, खुदा उससे कहता निकल पहले बाहर, मैं तुझे बरकत दूंगा। हालेलुया। अपने काम में छाट, अपनी चीजों में छाट, मैं तेरे बरकत दूंगा। अगर आप बरकत लेना चाहते हैं तो कुछ आपको बोझ रखना पड़ेगा, आपको छोड़ना पड़ेगा बिस्तर को। जिस तरह आप ड्यूटी के लिए वक्त पर उठते हैं इसी तरह आप चर्च के लिए भी उठे। खुदा से कहे मुझे बरकत दे, मुझे बढ़ा। मैं उसी जगह पर खड़ा हुआ, आज तक मेरी नींद चर्च के टाइम के बाद ही खुलती है, इसलिए जब उठता हूं तो सो के थक जाए बिक चुकी होती है, कोई बरकत नहीं है। यूसुफ को खुदा बाप की गोद से निकालता है, कहां डालता है? कुएं में। कहां डालता है? अगर यूसुफ पक्का हो जाए जरा, खुदा कमी इसलिए देता कि आप खुदा को ज्यादा याद करो। कुएं में पड़ता है, फिर क्यों कहता है खुदा तेरा शुक्र करो, तो मेरे साथ है, तेरा शुक्र हो। वो कुएं में दुआ कर रहा है, खुदाया तू मेरे साथ है, खुदावन तू मुझे अकेला कभी नहीं छोड़ता। कोई बात नहीं, अगर बाप की गोद से मैं निकल गया हूं, मैं तेरे तो हाथों में हूं। खुदा का कलाम कहता है किसी के दिल में खुदा ने रहम डाला कि जा और यूसुफ अंदर मर जाएगा, उसे बाहर निकाल, और कोई आया लौट के उसको निकाला और बेच दिया। हालेलुया। बेच दिया, किसी घर में चला गया। अब उस घर के अंदर उसको नौकरी मिल गई है, कभी उसके पोछी लगानी पड़ती है, कभी बर्तन मांजने पड़ते हैं, जो उसकी मालकिन कहती है वो करता है। लेकिन याद रखें अपने खुदा को नहीं भूलता। जब मालिक सो जाते हैं तो वो हाथ उठा लेता है, घुटनों को जमीन पर झुका लेता है, अपना सर खुदा के जोर रख देता है, कहता है खुदाया कोई बात नहीं, मेरे बाप के घर से तूने मुझे निकाला है, अपनी मोहब्बत से तो नहीं निकाला, तू तो मेरे साथ ही है। हालेलुया। और कलाम में आप पढ़ कर देखें क्या लिखा है, हर एक आयत के साथ ये बात लिखी है कि खुदा यूसुफ के साथ था। अभी उसे थप्पड़ी लगानी पड़ती है, नो प्रॉब्लम, उसे गालियां सुननी पड़ती है, नो प्रॉब्लम। एक तो होता है नौकर, नौकर जो होता है चल मालिक बड़ा करता है छोड़ दो, चलो मैं नौकरी होता देना नहीं, और वो तो गुलाम है, उसके पैसे भी हो गए, वो छोड़ भी नहीं सकता, उसे हर कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, हर कुछ सुनना पड़ता है, वो गुलाम है। लेकिन जिस दिन ये बात आई कि तू गुनाह कर, वो कहता ये नहीं कर सकता क्योंकि मैं खुदा का गुनहगार नहीं ठहरूंगा। हालेलुया। लालच किस बात का मिल रहा था कि मैं अपना बंदा मरवा दांगी, सारी दौलत तेरी हो जाएगी, जेड़े घर का तू गुलाम है ऐसे घर का तू मालिक बनेगा। वो कहता नहीं, ये गुनाह है। हालेलुया। हालेलुया। ये क्या है? गुनाह है, मैं नहीं करूंगा। कोई है ऐसा जो स्टैंड ले खुदा के लिए कि नहीं ये गुनाह है, मैं संडे को मेरी कमिटमेंट खुदा के साथ है, चाहे तू मेरा अजीज दोस्त है, मेरी बहन है, मेरा भाई है, मेरी नींद है, मेरा कारोबार है ना, मैं खुदा के साथ हूं, वो मुझे बरकत देने वाला है। अगर वो ही मुझे बरकत ना दे मैं क्या करूंगा? खुदा यूसुफ को क्या देने वाला था? बादशाही। क्या? एक घर की नहीं, दो घर की नहीं, एक फैमिली की नहीं, बल्कि पूरे मुल्क के मिस्र का बादशाह बनाना चाहता है। उस वक्त पूरी दुनिया के उत्ते जड़ा बड़ा मुल्क सी मिस्र। हालेलुया। और पोतीफर जो था वो तो एक नौकर था उस बादशाही का, उसके घर में काम कर रहा था, लेकिन खुदा उसे पोतीफर के घर में फिट नहीं करना चाहता। कई बार ऐसी इत्थे कहने की फिट हो जाने चंगा शुक्र है खुदा का, तनख्वाह बीबी जी टाइम ना भी देते हैं, बस का काम कर छड़ी है, भी सद लेती, कोई डर नहीं, कोई डर नहीं, बीबी जो
टाइम पर तनख्वाह देती, 3 टाइम रोटी देती, कपड़े भी दे देती, सारा कुछ, चलो कोई गल नहीं। हमने कभी फैसला किया नहीं, मेरी कमिटमेंट मेरे खुदा के साथ है। हालेलुया, हालेलुया। मैं अपने खुदा को छोड़कर इस मालकन की ताबेदारी नहीं कर सकता। अभी फैसला करो, अगर बातचीत करेंगे, अगर उसी घर में रहना है तो फिर आप गुनाह करें, अगर आगे बढ़ना है, अगर आप अड़े हुए हैं तो वहीं पर ही खड़े हुए हैं। अगर यूसुफ गुनाह करता उसी घर में मारा जाता। यूसुफ ने गुनाह नहीं किया, अल्लाह ने लिखा है उसको प्रॉब्लम बढ़ गई। आप थोड़ी, अगर आप खुदा के लिए चलते हैं ना, प्रॉब्लम आएगी, लेकिन डरना नहीं है। यूसुफ पर प्रॉब्लम और आई कि नहीं आई? उसे घर से निकालकर जेल जाना पड़ा। और कलाम क्या कहता है? खुदा जेल में भी यूसुफ के एक दिन में, 2 दिन में उसके मालकों को देखा, सूबेदारों को देखा, ये तो बंदा ही बड़ा अच्छा है, ये तो ईमानदार है। किसी के सर को दर्द हो, कहता है शिफा पा जा, शिफा हो जाती है। किसी के पेट में दर्द है, वो यूसुफ कहता है शिफा पा जा, पेट ठीक हो जाता है। कोई कैदी आता है, कहता है मेरी तो टांग नहीं काम कर रही, बहुत दर्द है, यूसुफ कहता है चल टांग ठीक हो जाती है। और इससे बढ़कर किसी को ख्वाब आता है तो यूसुफ कहता है ये तेरी ख्वाब है, कल तेरे साथ ऐसा होने वाला है, तो वैसा ही हो जाता है। हालेलुया। उन्होंने क्या किया? सारे कैदियों पर उसको साफ बना दिया। तो सारे कैदियों का तो सरदार है, क्योंकि खुदा यूसुफ के साथ था। कलाम में लिखा है खुदा ने देखा कि मेरा बंदा, मैंने एक बार चेक किया, मैंने कुएं में चेक किया, ये साबित कदम रहा। मैंने पोतीफार के घर में बेचा, ये साबित कदम रहा। मैंने उसकी बीवी के स्वभाव से इसको चेक किया, ये साबित कदम रहा। मैंने उसके स्वभाव से इसको जेल में डाला, ये साबित कदम रहा। मैंने हर बार इसको चेक किया, इसकी नौकरी डन है कि यही मुल्क मिस्र का हाकिम हो। हालेलुया। मेरा ख्याल है आप आगे नहीं बढ़ना चाहते। आपकी तालियों की आवाज ही नहीं आई कि यूसुफ का हाकिम बन गया है और आप अभी तक नहीं है। हालेलुया। फैसला करना पड़ेगा। अगर आप अड़े हुए हैं तो वहीं पर ही खड़े हुए। मेरे साथ को पढ़ लो, मैं दुआ करने वाला हूं। बेटी 23वीं आयत फिर से पढ़ दीजिए। सॉरी 24वीं आयत। हालेलुया। सुनिए, यिर्मयाह 7 बाब उसकी 24वीं आयत गौर से बेटी से सुनिए जरा। लेकिन उन्होंने ना सुना। लेकिन उन्होंने, बोलो उन्होंने, हमने सुना, उन्होंने ना सुना। आगे ना कान लगाया। ना कान लगाया। पादरी पावे जो कहता रुपए कह दो, हम अपनी जगह परफेक्ट हैं। आगे बल्कि अपनी मसलहतों और अपने बुरे दिल की सख्ती पर चले। अपनी मसलहतों और अपने बुरे दिल की सख्ती पर चले और बरगश्ता हुए और आगे ना बढ़े। और बरगश्ता हुए और आगे। अगर आपको बरकत बढ़नी चाहिए तो आपको अपनी जगह छोड़नी पड़ेगी। कई बार लोग ऐसा होता है कि वो स्टेप ही नहीं लेते। बच्चा जब चलना चाहता है ना, तो सबसे पहले वो घुटनों के साथ, टांगती हुई टांगों के साथ, कांपती हुई टांगों के साथ वो हिलती हुई वो स्टेप लेता है, खड़ा होता है, वो फिर गिर जाता है, लेकिन बाज नहीं आता। हालेलुया। जिसे चलना है, क्या करना है? जेते उन्हें नहीं चलना तो फिर सारी उम्र बैठा ही रहे या लत्ता ने भार रेड़ता रहे। अगर तो उसको चलना है, भागना है, दौड़ना है, तो उसको खड़ा होना पड़ेगा, स्टैंड लेना पड़ेगा। वो बार बार गिरता है, बार बार खड़ा होता है, बार बार गिरता है, बार बार खड़ा होता है। एक वक्त आता है जब वो खड़ा हो जाता है और फिर हंसता है। मैं खुश हो गया, मेरी अब टांगों ने बोझ उठा दिया। फिर वो चलना शुरू करता है आहिस्ता आहिस्ता, फिर वो दौड़ना शुरू करता है। एक वक्त आता है वो दौड़ता है और हर बार कामयाब होता है, गिरता नहीं है। आमीन, आमीन। अगर आप ये डर रहे हैं कि नहीं नहीं जे मैं इथों ही गया ना
ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਗਈ। ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤੂੰ ਆਪ ने क्या मेरा थोड़े काम कर। तो मकान गया। जब तक आपके घुटने डोल रहे हैं, आप स्टैंड नहीं ले पाते, उस वक्त तक उसी जगह पर खड़े हुए। अगर आप खड़े नहीं हो रहे इसका मतलब आप रेंग रहे हैं, अभी तक चल नहीं पा रहे। आपको बार बार ट्राई करनी पड़ेगी, बार बार उठ के चलने की कोशिश करना पड़ेगी, अपनी जगह को छोड़ना पड़ेगा। अगर आप अड़े हुए हैं तो उसी जगह पर खड़े हुए हैं। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, आपको नई सलाह लेनी पड़ेगी। मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे लिए क्या बरकत है, क्या मेरे लिए रास्तबाजी है, क्या मेरे लिए बेहतरी है। अगर तो आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपनी जगह छोड़नी पड़ेगी। हालेलुया। जो जिंदा है बोलो हालेलुया। चलेंगे कि नहीं चलेंगे? जगह छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे? अगर अगले स्टेप पर जाना है, अच्छी बरकत पर जाना है, तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। खुदा आप सबको बरकत दे।